स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। गैर कानूनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मंदिर के निर्माण को रोकने कमिश्नर का घेराव। बीजापुर गांधी चौक के पास सरकारी स्कूल नंबर 1 में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एसएस स्कूल रोड के पास ऐतिहासिक गंज को लगकर मंदिर के गैर कानूनी निर्माण को लेकर स्थानीय समाजी होराटगार और अंबेडकर सेना के पदाधिकारियों ने महानगर पालिका के बिना आदेश के निर्माण की जानकारी लेने पहुंचे तो कमिश्नर हर्षा शेट्टी ने मंदिर के काम के लिए ठराव पास किया गया है, लेकिन अब तक मेयर और सदस्यों की मोहर नहीं लगी। इस निर्माण काम को लेकर अनजान होने की बात करते हुए फौरन इस गैर कानूनी निर्माण के कामों को रोकने की बात की। सुनिए। देखिए, सामान्य सभा में ठराव पास हुआ जनरल बॉडी में वहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉर्पोरेशन में प्रोविजन है क्या सर? रिलीजियस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने का इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉर्पोरेशन? देखिए, सामान्य सभा में व्हाट आवर सबमिशन इज दैट वेदर इज देयर एनी प्रोविजन इन द कर्नाटका म्युनिसिपल एक्ट for constructing any religious structure or any it is not there. Not there. Yeah? It is not there. It is not in the act. Then the council have made wrong. Yes. It means the council have made a wrong decision. Then the very act itself and says the commissioner to again reconsider the very same subject if a wrong decision is taken. No, I have got no authority to resubmit before the board. No, nothing like that. If any wrong resolution has been passed, then I have to send it to government. That I will be doing. So my submission is, when the commissioner himself has come to a conclusion that, I'll tell you one thing. Still, the Tharav has not been signed by me. Let's try to understand. Okay? Still. Then the construction is going on. Is it not amounts to a illegal No, I construction? don't see. I want to know that the construction has been started by you only just now. Before that, nobody has told me. If that is the case, I'll send my people and get the stop. Yes, one point is clear that construction is illegal. अभी आके हमने आपको इस बारे में बताया था, पूरा ठराव पास करके चालू किया काम। जनरल बॉडी में डिस्कशन होके उसमें पास हुआ था, उल्टा बोला मैं, लेकिन अभी सिग्नेचर नहीं हुआ। इट इज कंफर्मेशन ऑफ दी रेजोल्यूशन। कंफर्मेशन करने के लिए मेयर का ठराव पे साइन होना। और जब वो कंफर्मेशन होता है तो मैं गवर्नमेंट को भेजता हूँ। ये ठराव इलीगल हुआ है। ठीक है सर, ठराव इलीगल है। अभी ऑलरेडी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो मैं बोल रहा हूँ, अभी जस्ट जो आप आके बोल रहे हैं तभी मुझे समझ में आया। अभी तक मेरे को पता नहीं था। तो आई सेंड माय पीपल एंड गेट इट स्टॉप। सर नेक्स्ट स्कूल ऑलरेडी ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ। ಓಕೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು। ಓಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ they will take it. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಿ ಅವರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ, ಉಳಿದಿದ್ದು SC/ST ಆಯೋಗ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕಬ್ಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ SC/ST ಆಯೋಗ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಥರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. SC/ST ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಬೇರೆ. That was not order, sir. That was only proposed recommendation. No, it is ನಿರ್ದೇಶನ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ. I was read that order. It is ನಿರ್ದೇಶನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ. On you have that document. I have read that document. I have go to seen. court. Take it and go Yes, to court. when there is any proposal, it cannot say that it is an order. No. If there is See, a listen to me. It is a commission. yes, Commission cannot order. yes, Commission can give directions. Direction, yes. Okay. So ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತಾನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. You can have a look at it once again or you can show it to the media also. ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ. Commission has got the authority to recommend. ಶಿಫಾರಸು ಅಂತಾನೆ Yes. ಮಾಡ್ತದೆ. And ಶಿಫಾರಸ್ in the nature of direction. That is binding. Try to understand that. And if you want to set it wrong, go to court. Okay. I have got no authority to interfere in that. then when ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ತೆಗೆದು See, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು
ನೀವು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ SC/ST ಆಯೋಗದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹೋಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ್ಣ ಓದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ADL ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ and get it protected. सर उसकी परमिशन इशू करेंगे क्या? नहीं करके बोल रहा हूँ ना मैं आपको। नहीं किए परमिशन नहीं किए, एनक्रोचमेंट में निकाले थे वो जी। तो परमिशन नहीं तो कंस्ट्रक्शन ना हो सकता है क्या सर? नहीं होता है, फिर परमिशन नहीं होता है। फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट इट इज सी दे आर पुअर पीपल एंड देयर उनका रोजी रोटी उनका जीवनोपाय वो सब ನಾವು ಇದು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ SC/ST ಆಯೋಗ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ತಾವು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಟಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೋಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವೇ ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಉಳಿತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಾಗನೇ 100% ರೋಡ್ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ADL ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಏನು ರೋಡ್ ವೈಡಿಂಗ್ 60 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಗ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜಾಗ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಾಗ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? until unless it is measured. Then prior to measurement how construction that is what I am trying to tell you. ನಿನ್ನೆ ಅವರು BO ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. BO ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ADL ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ 1 feet is encroached upon, then they have got and what is it not the illegal construction? Say I'm not talking about that. What I'm trying to tell you is if they are encroaching upon the school property, then the school authorities have got every right to remove their encroachment. Try to understand when the construction itself is going through the corporation. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ. why are you making some baseless allegation? ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸಿ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸಿ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋ ಮಿ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೀವಾ? ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ? ಇರಲಿಲ್ಲ. It means you have booked a case against the contractor. When the commissioner clearly disclosing that he has not permitted them, he has not given work order, then the construction commissioner version is right because he clearly telling that he has not given work order. It means the person who taking the construction is a illegal trespasser. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ SC/ST ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಾವಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ST ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೇನ್ರಿ? ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರದು ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಬಲ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? the person who is construction, I mean taking
the person who is going to construct the file a shop. case against him. No, why we can't? File a complaint against him because he is unknowingly or knowingly he is saying your name. Yes, sir. See, so many people tell my name. If some construction is going on, if No, he says that corporation. the has end of the given me- day, all the things are coming on you, na sir. Obviously, at the end of the day, in case of a district. कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे साथ बात किया, बात करने के बाद मेरे पास कमिश्नर का नाम बोला. नहीं बोला है, पूरा नाम ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೀಗ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅತರೈಸ್ಡ್ हाँ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ वो एक कंस्ट्रक्शन को पहले स्टॉप करो सर. एंड द थिंग द पीपल आर यूजिंग पुलिस बैरिकेड टू कंस्ट्रक्ट सर वो क्या है बीजापुर की शांति को भंग करने वाला काम है प्लीज आप उससे थोड़ा इमीडिएट एक्शन Yes, yes, yes. I'll send my people. Please, sir. But see, what happens is, my person will go and stop it. Okay, sir. And there are so many things also. अभी किले के बाजू में सब रातों रात बन जाता है. सर So what you can do is you can better find the police case. That's That what is best. we'll do That that. is best. Sir. Okay. We'll do that. Right. But anyhow, and जब हम लोगों को पता चलता है तो हम लोग थोड़ा सा उसको मतलब फ्लेक्सिबल होने के बावजूद उसको जो नहीं कानून में जो है उसको वो कर लेंगे. See, my job here is to balance things. Okay, sir. Okay. Not to take any stringent steps and then So keep it that. every time you should have to be like this only, sir. That's what I have been doing here. That's what I'm telling you. I have to balance this side also. I have to balance that side also. Sir, the illegal things are happening around the No, see, jungle. there are two things. One, the general body has passed a resolution. Now, if general body has passed a resolution, whether that is correct or wrong, if it is wrong in the eye of law, Okay, sir. then I will send it to government to cancel the resolution. Yes, sir. In couple of cases, I have done that. Yes, sir. But when I will get that authority, when mayor sends that resolution, Okay. still mayor has not signed the resolution. So we'll file a case against the council also. इस मौके पर समाजी होराटगारों ने बात करते हुए ये सारा खेल आने वाले इलेक्शन में राजनीति करते हुए बीजापुर की शांति बिगाड़कर जनता में जात के नाम पर तनाव पैदा करने की साजिश करने का आरोप लगाया। कल हम लोग एसएस रोड के पास जा रहे थे तो वहाँ पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन जो एक गंज है जो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वहाँ पे पुलिस का एक बैरिकेड लगा के कुछ 2 पोल मतलब डिगिंग चल रहा था। तो जब जाके हम लोगों ने उनसे पूछा तो क्या चल रहा है तो बताया गया कि वहाँ पे कुछ एक मंदिर का कॉरपोरेशन से ठहराव किया गया है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जब कॉरपोरेशन का नाम आया तो कॉरपोरेशन में हम लोग आए, आकर पेपर्स जो है नहीं जिस तरह का ठहराव हुआ है जो चीज़ें हुई उसको निकालने की कोशिश किए। तो जैसे उन लोगों ने बताया यहाँ पे काउंसिल में एक ठहराव किया गया है, वो एक मंडली है, कोई एक मंडली है गणेश कोई मंडली है, उसके लिए यहाँ पे ठहराव किया गया है। लेकिन उस ठहराव पे अब तक काउंसिल के ठहराव के बाद में मेयर की सिग्नेचर नहीं हुई है, ना तो वो कॉरपोरेशन की नज़र में कमिश्नर की नज़र में आया है। फिर भी वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर का, और ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ़ और सिर्फ बीजापुर की सियासत को गरमाने के लिए किया गया है। अगर इस ठहराव के बाद में अगर उन्हें काम करना था तो ये दिसंबर में ठहराव किया गया है 2017 में, तो वहीं पे उसके 8-10 दिन के बाद में अगर वो लोग काम शुरू करते तो मुझे अफसोस ना होता। लेकिन ये इलेक्शन के नज़दीक में एक बीजापुर में जो एक शांति है हिंदू मुसलमानों की, उसे भंग करने के लिए कुछ लोगों ने उस काम को आगाज़ किया है। और इस मंदिर के निर्माण के लिए इसको प्रपोज़ल जो है ने हमारे बसवनगौड़ा साहब MLC उन्होंने प्रपोज़ किया है। तो जब उनका नाम आया तो मुझे समझ गया कि ये जो है नहीं एक राजनीति चल रही है। तो मैं बीजापुर के मुसलमानों हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी इलीगल काम हो रहे हैं, जिस तरीके के भी काम हो रहे हैं, उनमें ना आप पार्टिसिपेट करते हुए इस शहर की शांति को भंग करने वाले काम करें। ये पूरा गेम जो है ना एक पॉलिटिकल गेम है, आप समझ जाएं। और मुझे अफसोस इस बात का हुआ जब हम लोग कॉरपोरेशन में आए तो कॉरपोरेशन वालों ने भी हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा हमें पता भी नहीं है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब आपको पता चल रहा है जो कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप उसको जाके रोकिए। तो जब हमने कमिश्नर को कहा तो कमिश्नर ने बोला है कि वो इमीडिएटली वहाँ पे किसी को भेजेंगे। और साथ ही साथ मैंने आर्कोलॉजी वालों से भी बात की। आर्कोलॉजी वालों को तो उनका एक अलग ही रवैया है। जब हम लोग कोई एक जो है ना घर बनाना चाहते हैं तो वो लोग अपना मीटर टेप लेकर आ जाते हैं, वहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, वो 100 मीटर की दूरी में हो या ना हो। लेकिन ये 1 फुट के जो है ना बगल में वहाँ पे एक डिगिंग चल रही है, काम चल रही है, और उन लोगों को खबर भी नहीं है और वो लोग आ भी नहीं रहे हैं। मैंने 2 बार कॉल किया, उसके बावजूद भी वो लोग कोई नहीं आए। अंबेडकर स्वतंत्र सेना की तरफ से आज हमने हर्षा शेट्टी कमिश्नर के साथ बात की। यहाँ पे 2 मुद्दों पे बात चल रही थी। एक गांधी चौक में जो कन्नड़ा स्कूल है उसके बारे में, और एक गंज के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चलाया जा रहा है, जो कि एक आदिल शाह ज़माने का एक
एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है, तो वहाँ पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उसके बारे में हमने हर्षा शेट्टी से बात की, तो उन्होंने बताया, साफ सीधा हमें बताया है कि हमने कोई परमिशन नहीं दी और ना ही ये जो भी ठराव पास करके यहाँ पे ये लोग ठराव पास किए हैं, इसके ऊपर मेयर की भी सिग्नेचर नहीं हुई। टोटली अभी जो है इलीगल चल रहा है। लेकिन मैं बीजापुर की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं आवाज़ उठाने वाले। बीजापुर शहर में क्या चल रहा है आप इससे बेखबर है। मैं बीजापुर के युवाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारे बीजापुर की शांति को बनाए रखने के लिए एक कदम उठाया गया है और बीजापुर की जो हमारे स्कूल है गांधी चौक स्कूल की, उसको बचाने के लिए हमने कदम उठाया है। आज ये भारत जो प्रजातंत्र देश है, प्रजा यहाँ की राजा है, तो राजा को राजा के सरकारी रहना चाहिए। जो भी हमारे नौकर हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको नौकरों की तरह रखना चाहिए। इसीलिए मैं सब लोगों से, बीजापुर के सभी लोगों से मैं आज यहाँ पे एक निवेदन करता हूँ कि सब के सब लोग मिलके हमारा साथ दे। आज बीजापुर सिटी में दो इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर हमारी बहस चल रही, चर्चा चल रही है और आज कमिश्नर हर्षा शेट्टी, कॉरपोरेशन कमिश्नर को आके हम क्लैरिफिकेशन के लिए आए थे। तो यहाँ पर एक कन्नड़ा स्कूल गांधी चौक के सामने की जो कन्नड़ा स्कूल है उसका एक मुद्दा और दूसरा गंज के सामने एक टेंपल कंस्ट्रक्शन, एलिज्ड टेंपल, लाइकली टू प्रपोज टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए काम चल रहा है। इस वजह से सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्कूल के कैंपस में एनक्रोचमेंट करके बिल्डिंग जो बनाई जा रही थी, कंस्ट्रक्शन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा था, वहाँ पर अभी हर्षा शेट्टी कॉरपोरेशन कमिश्नर को पूछे जाने के बाद में उन्होंने बताया कि कॉरपोरेशन कमिश्नर से कोई परमिशन नहीं है और बुडुकट जनांग SC/ST कमीशन की तरफ से निर्देशन आया है, बल्कि उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली प्रपोजल है, ऑर्डर नहीं है वो। और जब तक कि कोई कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ कॉरपोरेशन की परमिशन के बगैर किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिट में नहीं होना चाहिए। ये अच्छी तरह से हर्षा शेट्टी को भी पता है। ये जानते हुए भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में वो कंस्ट्रक्शन को परमिशन दे करके बिना परमिशन के इलीगल परमिशन पर काम चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो गंज के सामने की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन प्रोसीड होने का एक रीज़न ये है कि उसमें हर्षा शेट्टी का 110% इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जब हर्षा शेट्टी के ऊपर करप्शन के और एलिगेशन, ट्रांसफ़र की एलिगेशन जब जोर से शुरू हुई थी, होराट चल रहा था, तो बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ सबसे सामने आकर के उनके प्रोटेस्ट में खड़े हुए। ये हॉनेस्ट और फेयर ट्रांसपेरेंट ऑफिसर है, इसको एलिगेशन के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करना। इसका मतलब ये काम की जो एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज़ को लीगलाइज करने के लिए हर्षा शेट्टी को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बीजापुर एक शांति सौहार्दते का गांव है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर के रहने। इस मामले में ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ मीडिया को और जनता को कि कम्युनल माइंड ऑफिसर को रख करके कम्युनल फ्रैक्शंस करके यहाँ पर पॉलिटिकल गेन करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा रोल बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ का है। तो मैं सम्मान्य उस्तुवारी मिनिस्टर श्री MB पाटिल और सिटी MLA डॉक्टर मकबूल बागवान साहब, जो अभी तक 5 साल से फुल रिलैक्स कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अभी 2 महीने के अंदर आप इमीडिएट इस ऐसे ऑफिसरों को जो इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, इनको इमीडिएट यहाँ से किक आउट करना। अगर इनको ये किक आउट नहीं करेंगे तो जनता 110% इनको किक आउट करने के लिए प्रिपेयर हो गई है। अभी प्रिपेयर ओनली भी इलेक्शन का अलार्म बजना है बस। तो इसलिए सिटी की शांति, सिटी का एटमॉस्फेयर, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर MB पाटिल साहब और डॉक्टर मकबूल बागवान साहब की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी में है। तो ये बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ MLC, BJP और कांग्रेस दोनों का टट्टू है। इट मीन्स इलेक्शन के वोट MLC बनने के लिए कांग्रेस का समर्थन लिया है और पार्टी में ज्वाइन होने के लिए BJP के हिंदू संगठन लोगों को प्रोवोक करके मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा लगा करके पॉलिटिकल गेन करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए हर्षा शेट्टी जैसे ऑफिसर जब तक रहेंगे बीजापुर सिटी में, ये पॉलिटिकल माफियाज़ को जो है ना प्रमोशन मिलता रहेगा। इसलिए मेरी ये
मीडिया से रिक्वेस्ट है और मेरी ये जनता से रिक्वेस्ट है कि ऐसे करप्ट और इलीगल एक्टिविटीज़ के ऑफिसर को प्रमोट करने के बजाय इनको यहाँ से किकआउट करना। शहर बीजापुर में आज एक अनोखी बात सुनने में आई और देखने में आई कि अगर एक गरीब आदमी 10 बाय 10 का कच्चा मकान बना रहा होता है तो म्यूनसिपालिटी के महानगर पालिका के कर्मचारी आकर उस पर धावा बोलते हैं और कहते हैं कि तेरी परमिशन कहाँ है। लेकिन शहर बीजापुर के बीचों बीच में गांधी प्रतिमा, गांधी चौक सर्कल में जो कन्नड़ा स्कूल है वहाँ पर जो है दिन दहाड़े कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्कूल के इहाते में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसके अलावा जो सैनिक स्कूल के पास, गंज के पास एक धार्मिक मंदिर भी बनाया जा रहा है। लेकिन जब हम इस बात का जिक्र महानगर पालिका के कमिश्नर श्री हर्षा शेट्टी जी से पूछे तो उन्होंने कहते हैं कि इसको हमने परमिशन नहीं दिया, ना तो हमने मंदिर बनाने की परमिशन दी, ना तो हमें स्कूल के पास दुकानें बनाने की परमिशन दी। अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा है और अंबेडकर सेना के कार्यकर्ताओं ने भी आकर यहाँ पर घेराव डाला और कमिश्नर से बातचीत की। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।